સ્પેશિયલી આજનું સેશન લેવાનું જે રીઝન છે ને, દરેકે ફેમિલીમાં કોઈક ને કોઈક એક્સપિરિયન્સ એવા કંઈક કર્યા હશે. અમારો જે સ્કૂલનો મિત્ર છે, બહુ જ સારી કંપની સિયારામ ગ્રુપ્સમાં છે અને સેલરી પણ ઘણી સારી છે, ડિઝાઇનર સેક્શન્સમાં છે. રાઉન્ડ અબાઉટ 1.30 ની એની સેલરી પણ છે. પણ આટલું સારું ગ્રુપ હોવા છતાં પણ, સિયારામ ગ્રુપ જેવું હોવા છતાં પણ એ લોકોને માર્ચ મહિનાથી સેલરી દેવામાં નથી આવી. ચલો એમનું સેવિંગ છે તો એ ભાઈ કઈ અત્યારના એના પર ચલાવી રહ્યા છે, પણ એમને જેવી માર્ચ મહિનાની સેલરી નહોતી આવીને એમને એપ્રિલ મહિનાથી જેનેરિક્સ મેડિસિનનું નાના પાયે કંઈક ને કંઈક કામ ચાલુ કરી દીધું. કહેવાનો મતલબ કે એમને તરત સ્વિચ ઓવર નો એક સરસ મજાનો રસ્તો વિચાર્યો કે ભાઈ મારી સેલરી તો કદાચ આવશે કે કદાચ પાછું હું રિસ્ટાર્ટ કરી શકીશ. તો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ ઘણા લોકોએ ફેસ કરી છે લોકડાઉનમાં. જે લોકો યોગા કરતા હતા, બેલેન્સ થઈને કઈ ને કઈ ઓલ્ટરનેટિવ તરત ડિસિઝન લઈ અને સ્ટાર્ટ કરી દીધું પોતાની ઇન્કમ સોર્સનો. જેડીભાઈનો ઇન્ટ્રોડક્શન દેવાની જરૂર જ નથી. જે લોકો જેડીભાઈને જાણે છે કે જેડીભાઈની જે ક્વોલિટી છે કે જે ચેરિટી કર્યું હોય ને, ચેરિટી, કોઈને હેપીનેસ શેર કર્યું હોય ને, તો એ જેડીભાઈ પાસેથી શીખવાની. એમાં પણ પછી ફ્લેવર અલગ અલગ, વેરાયટી. આપણે કોઈ વખત આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈએ ને તો આપણે આ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ ખાય, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈએ તો કઈ ચલો બીજી ફ્લેવરને ટેસ્ટ કરીએ. એવી જ રીતથી કોઈને પણ હેપીનેસ શેર કરવાની હોય, પછી એજ્યુકેશનનું ફિલ્ડ હોય તો પેલા જેડીભાઈ જ હોય. હોસ્પિટલની બહાર જઈને કોઈને પેશન્ટ્સ લોકોને ફૂડ દેવું છે અને ફૂડમાં પણ પાછું રસપુરી ખવડાવવાનું, એટલે એટલું એક્સ્ટ્રીમ લેવલ સુધી વિચારવાનું, એ ફક્ત જેડીભાઈના મગજમાં જ આવી શકે. તમારો વધારે સમય નહીં લેવો. જીતના ટોપ લેવલના એક્ઝિક્યુટિવ્સમાં છે, જે વર્લ્ડ વાઇડ અને ઇન્ડિયા લેવલ પર જે લોકોએ કામ કર્યું છે, એના માટે તો કોઈ વર્ડ્સ જ નથી આપણી પાસે. વેલકમ ટુ જેડીભાઈ. આપણી યોગની લેંગ્વેજમાં જેડીભાઈને વેલકમ કરીશું. હાથને સાઈડમાં રાખી દે, તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ ને લઈ. ચલો આપણે 500 ટાઈમ્સ યોગની ભાષામાં ક્લેપિંગ કરી અને ઓવર ટુ જેડી સર. હાથ સ્ટ્રેટ. ચલો સ્ટાર્ટ. જેડીભાઈ 500 તમારે કાઉન્ટ કરાવવાના છે. આ જેડીભાઈ માટે ક્લેપિંગ છે. કીપ યોર હેન્ડ બેક સ્ટ્રેટ. Thank you to all સિસ્ટમને કરી દો. for giving this opportunity. હલકા સા ઓર ઉપર. આમ તો જેડીભાઈ ને સ્ટેન્ડિંગ એડિએશન દેવું જોઈએ, પણ બધા ઘરમાં ઉભા રહેશે તો પાછા પ્રોબ્લેમ થશે, કેમ કે અંદરથી અવાજ આવશે કે ભાઈ થોડું કામ કરીને આપો. ચલો લાસ્ટ 5 ટાઈમ્સ. 1 2 3 4 5. થેન્ક યુ મિત્ર. ઓવર ટુ જેડી સર. તમારો વેલ્યુએબલ ટાઈમ મારે મિત્રો વેસ્ટ નથી કરો સવારમાં. જેડીભાઈ એક જ સેકન્ડ સ્ક્રીન શેર કરું છું અને થેન્ક યુ ફોર giving this wonderful opportunity. બેઝિકલી જીનેશભાઈ સાથે વાત થઈ હતી કે કોઈ બી ફાઇનાન્શિયલ અને શું નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી, એના માટે આપણે વાત કરશું. તો બેઝિક એક જે બી વસ્તુ આજે પ્રેઝન્ટેશન આપું છું, એક બેઝિક આઈડિયા આપું છું કે ફાઇનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન શું લાઈફમાં હોવી જોઈએ, અને સાથે શું શું નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ના એક ખાલી એક કે બે આઈડિયા જ આપીશ કે આવી ઘણી બધી વિડીયોઝ અવેલેબલ છે, તો એમાંથી આપણને જે શૂટ હોય કરી શકાય. તો બેઝિકલી આઈ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ડાયટ પ્લાન ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ હેલ્થ. 1 મિનિટ. સ્ક્રીન દેખાય છે? હા. અવાજ ક્લિયર નથી. અવાજ ક્લિયર નથી દેખાય છે. 1 મિનિટ. દિનેશભાઈ તમારું મ્યુટ કરું છું. હા, નો પ્રોબ્લેમ. બોલ દો. પછી સૌ પહેલા તો આઈ વિલ ગીવ માય ડિસ્ક્લેમર. આઈ એમ નોટ એ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર. બરોબર? જે બી આજે પ્રેઝન્ટેશન આપું છું, ઘણી બધી પાસ્ટમાં મિસ્ટેકો કરી અને એમાંથી જે લર્નિંગ છે એમાંથી આપી રહ્યો છું. કમલેશભાઈ, અવાજ ઇઝ ક્લિયર? વોઇસ ઇઝ ક્લિયર નાઉ? યસ યસ. ઓકે. એટલે જે બી ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇસ જે છે
એ કોઈ ઓફિશિયલ નથી, એકચ્યુઅલી ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટ, આઈ એમ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટ હોય એમની આપણે એડવાઇસ લેવી જોઈએ. પણ બેઝિકલી જે બી પાસ્ટમાં આપણે જે લર્નિંગ છે કે મિસ્ટેકો કરી હોય એમાંથી આપણે બધા શીખતા હોઈએ, અને એમાંના બેઝિક એક આઈડિયા આપું છું કે શું આપણે પ્લાન કરવું જોઈએ. એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપું છું પેલા લાઈફનું, કે જેના પેજ ઉપરથી આપણને આઈડિયા. એક રિક્વેસ્ટ છે, હિન્દીમાં બોલી શકશો? યસ સર. થેન્ક યુ. માઇક ઓન કરો, માઇક બંધ થઈ ગયું છે. मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट पास्ट में जो भी मैंने मिस्टेक्स किया या तो पास्ट में जो भी मैंने लर्निंग किया है उसके बेस पे ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. फाइनेंशियल जो डाइट प्लान का जो बात हुआ, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग ए हेल्थी हैबिट. जैसे हम लोग खाने पीने में एक जो बेसिक हम लोग जो हेल्थी हैबिट डेवलप करते हैं, या तो एक्सरसाइज, ये सब चीज हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल के अंदर भी हम लोग एक हेल्थी हैबिट डेवलप करने की जरूरत है. और उसके लिए एक बेसिक मैं एक लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं. एक स्लाइड बनाई हुई है, खाली बेसिक आपको ध्यान में आएगा. मिस्टर एक्स मुंबई से वापी से सूरत, मुंबई वापी से सूरत, सूरत से बड़ौदा और बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा है. उसने बताया हुआ है कि मुंबई 7 PM, वापी 10 PM, बीच में सिग्नल आए, सूरत 1 PM ही रीच, बीच में वापिस जहां जहां सिग्नल आए ही रुक, उसके बाद बड़ौदा, उसके बाद अहमदाबाद. जैसे ये पिक्चर या तो ये स्लाइड में हमने देखा कि मिस्टर एक्स इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सूरत टू मुंबई. ही हैज सेट हिज टारगेट टू रीच अहमदाबाद. जैसे हम लोग को कभी भी अहमदाबाद जाना है तो हम लोग कैसे प्लान करते हैं कि भाई हम लोग को शाम को 6 बजे के 7 बजे पहुंचना है, तो वी विल स्टार्ट बाय 7 o'clock इन द मॉर्निंग. मुंबई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वापी 10-11 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद सूरत 1 बजे, उसके बाद समझो बड़ौदा 3-4 बजे, बीच में जहां भी हर्डल्स आएगा, जहां भी रुकना पड़ेगा रुकेंगे. तो जैसे ये ट्रैवलिंग में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि क्या टाइम पे हम क्या सेट, कहाँ पहुंचेंगे, बीच में जहां भी सिग्नल आएगा या तो कोई भी हर्डल आएगा, तो उसका मतलब है कि वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो ये जैसे ट्रैवलिंग में हम लोग प्लान कर रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल के अंदर भी देयर इज अ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. एक आदमी समझो कि 80 की स्पीड में सुबह 6 बजे निकल के शाम को 7 बजे ये प्लानिंग के हिसाब से पहुंचे, और दूसरा वाई, मिस्टर वाई समझो 120 की स्पीड में निकले और कभी कहाँ पहुंचेगा किसको नहीं मालूम है. तो हमारी लाइफ में भी फाइनेंस के लिए हम लोग बिना प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे मालूम नहीं. बोरीवली से निकल के नाला सापोरा पहुंचेंगे कि चर्च गेट पहुंचेंगे, उसका प्लानिंग मालूम नहीं. तो जैसे लाइफ में ईच एंड एवरी स्टेट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ऐसे फाइनेंस के अंदर भी वी आर ऑलवेज निग्लेक्टिंग, बट फाइनेंस के लिए भी ऑलवेज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और सिस्टमेटिक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. और बेसिक उसका जो फ्लो है कि बेसिक डिसिप्लिन वी हैव टू मेंटेन. जैसे यहाँ मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन की, जहां भी सिग्नल आएगा तो हमको रुकना है, ऐसे बिजनेस और फाइनेंस के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो. तो उसके बारे में मैं थोड़ा आगे आई विल एक्सप्लेन कि फाइनेंशियल बेसिक, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन या तो हेल्थ टिप्स जो बात कर रहा हूँ, ये बेसिक फंडामेंटल है जो फंडामेंटल हमको फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज सेट अप गोल्स टू अचीव योर फाइनेंशियल माइलस्टोन. हम लोग की लाइफ के अंदर जैसे हमने यहाँ मुंबई टू अहमदाबाद पहुंचना है, ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल प्लान है वी हैव टू प्लान. और जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ऐसे प्लान करना चाहिए. स्ट्रेट अवे वी शुड नॉट प्लान कि डायरेक्टली हम लोग अहमदाबाद पहुंचेंगे, उसके बदले वी शुड प्लान कि भाई वापी कितने बजे पहुंचूंगा, बड़ौदा कितने बजे पहुंचूंगा. ऐसे फाइनेंशियल प्लान के अंदर भी 3 साल का क्या प्लान होगा, करंट ईयर का मेरा क्या प्लान होगा, और 5 ईयर का प्लान होगा, और अल्टीमेटली मेरा 25 साल या 50 साल के अंदर क्या प्लानिंग होगा. दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ये प्लानिंग इसीलिए जरूरत है कि समझो कि ये करंट सिचुएशन, तो हमारे जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्लान है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए.
शॉर्ट टर्म हमारे प्लान थे कि 1 साल में हम ये टर्नओवर अचीव करेंगे, तो ये 6 महीना तो ऐसे ही निकल गया। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्लान होगा तो एटलीस्ट मीडियम टर्म में वी विल अंडरस्टैंड कि शॉर्ट टर्म में हमारा 5 महीना बिगड़ा हुआ है, तो हाउ वी हैव टू इंक्रीज अवर एफर्ट्स कि हमारा अल्टीमेट तो लॉन्ग टर्म है प्लान करना। ये मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ये हम हमारी रेगुलर लाइफ में भी ये फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, बाकी कोई मैं नई चीज बात नहीं कर रहा हूँ। तो वी शुड प्लान शॉर्ट टर्म, वी शुड हैव ए शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। एवरीथिंग शुड बी प्लानेड कि हम 3 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे। हमारी लड़की की शादी के लिए हम लोग कभी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे सेविंग आज से स्टार्ट करेंगे। हम लोग फॉरेन टूर कैसे प्लान करें, कहाँ प्लान करें, तो एवरीथिंग शुड बी प्लान। 50 साल रिटायरमेंट के बाद भी मेरा क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो ये सब प्लान करेंगे तो वो हिसाब से वी विल अकॉर्डिंगली वर्क। तो ऑलवेज सेट ए गोल टू अचीव आवर फाइनेंशियल माइलस्टोन। सेकंड, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग जो है वो मंथली इनकम जो है हमारी, उसमें से पहले तो वी शुड ऑलवेज पे ईएमआई एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। ऑलवेज पहले प्लान करने का कि जो हमारा मंथली ईएमआई है या तो मंथली कमिटमेंट है, बोरोइंग है, इसीलिए करना है कि वो फेल होगा तो हमारी क्रेडिट रेटिंग चली जाती है, फ्यूचर में कभी हमको कभी भी लोन मिल नहीं सकती है। तो ऑलवेज जो भी मंथली इनकम आवे उसमें से पहले वी शुड पे अवर मंथली ईएमआई। उसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो मेडिक्लेम है, एलआईसी है, दैट इज अ बेसिक नेसेसिटी, तो वी शुड पे। उसके बाद जो बचता है उसमें से वी शुड पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और जो बैलेंस बचता है वो सेविंग गिना जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल कि सेविंग किसको गिनना चाहिए। और उसके बाद उसमें से जो प्रोविजन फॉर इमरजेंसी फंड हम रखना चाहिए, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है दैट शुड बी इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल लेता हूँ कि 1 लाख रुपया मैं अर्न कर रहा हूँ, उसमें से मेरा मंथली ईएमआई हाउसिंग लोन का है कि और कोई बोरोइंग है, तो उसमें से मैं 15,000 दे रहा हूँ तो 85 बचेगा। उसमें से मेरा घर का खर्चा 35 जा रहा है तो 50,000 रुपये, तो 50,000 इज माई 50,000 इज माई सेविंग। उसमें से मैं इमरजेंसी फंड रखूंगा कि 2-3 महीने के लिए मेरे को सेविंग करना है, तो पास में एवरी मंथ आई विल सेव, समझो कि 2 और 3%, तो मैं 3,000-4,000 रुपया सेव करूंगा, क्या 5,000 रुपया सेव करूंगा, तो 45 विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है समझो मेरा पास में भी है, तो सेविंग इज 45,000, लेकिन मैं 10 साल से ये कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट में भी है 1 करोड़ और 50 लाख और 50 लाख रुपए। सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हमारी सेविंग जो है ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद 10%, मोर देन 10%। इनिशियली मैं 1 लाख रुपया कमाऊँ तो एटलीस्ट आई शुड सेव 10,000, एंड स्टेप बाय स्टेप आई शुड इंक्रीज टू 50%, 70%, क्योंकि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है कि मंथली ईएमआई है हमारा, वो फिक्स है। आज नॉर्मल केस में 50,000 रुपया खर्चा हमारा जो है वो रेगुलर सबके केस में 30,000 से 50,000 के बीच में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। तो जैसे जैसे इंक्रीज हमारी इनकम इंक्रीज होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, हमारा सेविंग बढ़ते जाएगा। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, और वी शुड ऑलवेज प्लान कि पहले हमारा ईएमआई जाए, और बेसिकली नॉर्मल केस में वी शुड प्लान कि हमारा सेविंग क्या होना चाहिए। तो ऑलवेज जो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी जो एडवाइजर है वो बोलेगा कि आपके मंथली इनकम है उसमें से पहले सेविंग के परसेंटेज फिक्स करो कि 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मैं 50,000 सेव करूंगा, बैलेंस में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में सेव एक्सपेंस करूंगा। तो ये भी एक वन ऑफ द फंडामेंटल है कि हमारा जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वी शुड प्लान द बैलेंस अवेलेबल। ऑलवेज मैंने जैसे बताया कि प्लान द सेविंग फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए हम लोग को पहले सेविंग का प्लान करना चाहिए कि मंथली मेरे को सेव क्या करना है, और बैलेंस जो अवेलेबल है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में वी शुड स्पेंड। तो ये ऐसा नहीं होवे कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जावे या तो मंथली ईएमआई इतना बढ़ जावे कि सेविंग माइनस में चला जावे, वी हैव टू बोरो। एंड ऑलवेज सेट अप ए अलार्म अलर्ट फॉर ऑल आउटगोइंग्स। जो मंथली जितने भी अपने आउटगोइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि मंथली जितने भी अपने कमिटमेंट है उसका एक अलर्ट हमको देना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का हमारा बिल कभी पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी करना है,
MTN, ये सब में ऑलमोस्ट 18% to 36% डिले का इंटरेस्ट है। क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट नहीं करेंगे, एक दिन भी डिले हुआ तो यू टू पे 36%। तो ऑलवेज 2 या 3 दिन का गैप रखो, ऑलवेज पे बिफोर ड्यू डेट। तो उसमें बहुत सारे में ड्यू डेट के पहले हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट भी ऑल्सो अवेलेबल। तो ऑलवेज सेट ए अलार्म फॉर ऑल आउट गोइंग एंड मंथली जो कमिटमेंट है कि हमारे जो भी फिक्स कमिटमेंट है, सैलरी पेमेंट है, स्टाफ के है या तो अपना हाउस होल्ड स्टाफ है उसको पेमेंट करना है, तो पहले उसका जो ड्यू डेट है कि हम लोग को उसको पे 1 तारीख को देना है या 7 तारीख को, तो पहले वो पेमेंट करके उसके बाद जो हमारा सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का वी शुड प्लान। ऑलवेज प्लान एडेक्वेट लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम। ये हम लोग बहुत टाइम हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर हम लोग को नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वी शुड प्लान एडेक्वेट लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम। लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मल केस में 2 ऑप्शन ज्यादा है मार्केट में, एक टर्म इंश्योरेंस एंड एक एंडोमेंट पॉलिसी। जो एंडोमेंट पॉलिसी है उसके अंदर हम लोग जो इन्वेस्ट प्रीमियम भरते हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, they will repay us up on a completion of our maturity plan. एग्जाम्पल कि हम 25 साल का कोई प्लान कर रहे हैं, एवरी मंथ एवरी ईयर वी आर पेइंग, समझो कि 1 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, 20 साल का पॉलिसी है, तो एवरी ईयर वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 प्रीमियम। तो 25 साल 20 साल या 25 साल के बाद जब भी मेच्योरिटी आएगी तो आपने जो 1 लाख रुपया भरा हुआ है वो 1 लाख रुपया भी मिलेगा, साथ में बोनस मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज इन अ एंडोमेंट पॉलिसी। और टर्म इंश्योरेंस कंसेप्ट ऐसा है कि ये जो 5,000 का प्रीमियम है उसके बदले आपको 500 रुपया प्रीमियम देना है, बट यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल रुपी। उसके अंदर आप डेथ हो जाएंगे, आपका डेथ होगा तो आपके फैमिली को ये पैसा मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिसी इन अ नाउअडेज। क्या होता है, एंडोमेंट पॉलिसी जो हम लोग ले रहे हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिक फंडा आपको समझाता हूँ। हम लोग जो एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं वो जो पैसा आता है वो म्यूचुअल फंड में या तो वो कंपनी में LIC इन्वेस्ट करती है, उसमें से जो वो रिटर्न आएगा दैट दे आर रिटर्निंग टू अस। तो टेक एन एग्जांपल की मार्केट में आज की तारीख में 6% का इंटरेस्ट है, तो LIC विल इन्वेस्ट, पहले जो हमारा प्रीमियम 5,000 रुपया है उसमें से वो पहले तो जो 500 रुपया जो हमारा रिस्क इंश्योरेंस है, वो रिस्क एलिमेंट जो है 500 रुपया वो सब इंश्योरेंस करती है लंदन या तो कोई भी फॉरेन की जो इंश्योरेंस कंपनी है वहां वो इंश्योरेंस प्रीमियम करेंगे। तो टेक एन एग्जांपल वो 500 के बदले वो 400 रुपया पेमेंट कर रही है। दे आर ऑल्सो एजेंट, LIC इज ऑल्सो एजेंट। इंटरनेशनल जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड की जो 4 है और 5, उसके जितने भी इंडिया में इंश्योरेंस एजेंसी है दे आर ओनली एजेंट। तो हम लोग जो प्रीमियम भर रहे हैं उसमें से वो इंश्योरेंस हमारा लेगी, वो बल्क इंश्योरेंस लेगी कि 25 साल से 35 साल का मेरा 10 लाख पर्सन का मेरा इंश्योरेंस लो, तो वो बल्क इंश्योरेंस लेते हैं। उसमें से वो इंश्योरेंस एलिमेंट पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो उसके पास जो पेमेंट रहता है, सेविंग रहती है, वो म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 6% मार्केट में हमको रिटर्न मिल रहा है, तो LIC को भी मार्केट में 6% ही मिलेगा। तो LIC जो 6% कमा रही है उसमें से वो लोग का जो 2% का उसका खुद का प्रॉफिट रहेगा और या स्टाफ उसका एक्सपेंस रहेगा, वो लेस करने के बाद हमारा एंडोमेंट का रिटर्न होगा वो 4% हमको देगी आफ्टर द एंड ऑफ द मेच्योरिटी। तो जो नया फंडा है टर्म इंश्योरेंस लेने का कि इंश्योरेंस वाले को 4,500 रुपया देने के बदले हम लोग ही म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी प्लानेड। कि ऐसा नहीं है कि हम म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहाँ डबल म्यूचुअल फंड LIC ऑल्सो वहाँ खुद का प्रॉफिट एज वेल एज उसका जो रेगुलर उसका एडमिन कॉस्ट है हमको लग रहा है, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी है LIC की उसके जो स्टाफ के खर्चा ऑल्सो वी हैव टू बेयर, इंश्योरेंस के जो स्टाफ है उसके भी खर्चे हमको बेयर करना है। तो देयर इज ऑल्सो ऑलवेज ए ऑप्शन कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस ले और बाकी का से भी हमको जहाँ प्रॉपर लगे वहां हम इन्वेस्ट कर। सेम वे मेडिक्लेम के अंदर देयर आर 3 मोर ऑप्शन। एक फैमिली फ्लोटर का कंसेप्ट रेगुलरली अभी फ्लोट चल रहा है, उसके अंदर जो फैमिली फ्लोटर में हम लोग के जो फैमिली है, समझो टेक एन एग्जांपल कि फैमिली में 4 जन है, तो 5 लाख का मैं पॉलिसी ले रहा हूँ,
फैमिली में कोई भी पर्सन को 5 लाख तक का इंश्योरेंस आएगा तो दे विल पे टिल 5 लाख रुपए। टेक एन एग्जांपल कि किसको 2 लाख रुपए का हमने हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस हुआ था और 3 महीने के बाद दूसरे फैमिली को 5 लाख का खर्चा हुआ, तो देयर एक्सपेंस विल बी लिमिटेड टू 5 लाख, तो दे विल पे ओनली 3 लाख रुपीज। इनिशियली 2 लाख दिया था, उसके बाद वो 3 लाख रुपया देगा। देयर रिस्क इज लिमिटेड टू 5 लाख रुपये। तो दिस इज वन ऑफ द फंडा कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आप ले सकते हो, या तो आपकी इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हो कि सबके 1-1 लाख रुपया, फैमिली के 4 पर्सन है तो चारों के 1-1 लाख रुपया लिया, तो चारों का 1-1 लाख तक का रिस्क होगा, इंश्योरेंस वो लोग कवर करेंगे। तो चारों हॉस्पिटलाइजेशन हुए तो अप टू 1 लाख रुपीज पेमेंट करेंगे। लेकिन उसके पहले फैमिली फ्लोटर इज मोर एडवाइजेबल कि आज नॉर्मल केस में टेक एन एग्जांपल कि 10 लाख रुपए का हमने फैमिली फ्लोटर लिया, तो नॉर्मल केस में फैमिली रिस्क की कोई भी फैमिली में जो बीमार होगा, इलनेस आएगी, तो मैक्सिमम वी कैन कंसिडर कि फैमिली में 1 या 2 जन को आएगी। तो 10 लाख रुपए का हमारा फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले लिया इज मोर एडवाइजेबल इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ इंडिविजुअल मेडिकल पॉलिसी। देयर आर आल्सो ए ग्रुप मेडिकल पॉलिसी। बहुत सारे कंपनी में जॉब करते रहेंगे तो वो लोग का ग्रुप मेडिकल पॉलिसी होता है, तो सेम इंडिविजुअल मेडिकल पॉलिसी है, सेम ग्रुप मेडिकल पॉलिसी concept is also there. तो any choice of मेडिक्लेम ऑप्शन वी कैन प्लान। तो हमारे जो भी फाइनेंशियल प्लान है उसमें ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है, उसको ऑलवेज निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज वी शुड प्लान कि पहला मेरा इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पेमेंट टाइमली हो जाए, उसकी ड्यू डेट उसको सेट, वी हैव टू सेट अ कि उसके 1 महीने पहले वी शुड प्लान कि उसका जो 15 दिन या 1 महीने के पहले पेमेंट कर दे। मार्च महीने में जिसका भी 23 तारीख के बाद पेमेंट था वो पेमेंट करने के लिए नहीं जा पाए, उसके बाद ये लोग ने जून या सितंबर तक एक्सटेंड किया हुआ है पेमेंट करने के लिए। लेकिन ये सिचुएशन आ जाए कि हमारे फैमिली में कोई भी एक्सीडेंटली हो तो ये टाइमली पेमेंट नहीं हुए और अनफॉर्चुनेट बन जावे तो एक क्लेम या ये ऑप्शन चला नहीं जावे। तो वी शुड ऑलवेज प्लान की 1 महीने पहले ये पेमेंट कर ले। ऑलवेज रिटर्न के अंदर हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल वी शुड अंडरस्टैंड। एक फंडामेंटल है कि इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट हमको समझनी चाहिए। हमारा जो रिटर्न हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आज की तारीख में टेक एन एग्जांपल की समझो रिटर्न हमको मिल रहा है 6% का और इन्फ्लेशन मार्केट में 4% to 5% ऑन पेपर चल रहा है। एक्चुअल में हम सबको मालूम है कि इन्फ्लेशन 6% to 9% में हम लोग जो परचेज कर रहे हैं वो सब में 6 to 9% है। लेकिन टेक एन एग्जांपल के ऑफिशियल जो डेटा है वो इन्फ्लेशन 4 to 5% है। तो हम लोग जो सेव कर रहे हैं 6% में कि एफडी में हमने 1 लाख रुपया रखा, उसका 6 लाख रुपया 6% हमको मिलेगा, तो एवरी ईयर 6,000 रुपया हमको मिलेगा। तो इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट की वजह से 4,000 रुपया हमको जो मिला हुआ है वो हमको गिनना नहीं चाहिए। हम लोग को खाली मिला हुआ है 2,000 रुपया, क्योंकि हमारी जो 1 लाख रुपया की परचेजिंग पावर है वो नेक्स्ट ईयर में वही चीज जो आज हम लोग लेने जा रहे हैं वो 1 साल के बाद लेने जाएंगे, तो आज जो 1 लाख में मिल रही है वो नेक्स्ट ईयर में 1,04,000 में मिल रही है। तो हमारे पास तो 2,000 रुपया ही बढ़ा हुआ है। तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज क्या चल रहा है और उसके सामने हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे सामने कितना गैप हमको मिल रहा है। तो दैट इज ओनली वी शुड कंसिडर कि हमको एक्चुअल रिटर्न हमको 3% मिल रहा है या 5% मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एफडी के ऊपर लिखा हुआ कि 9% मिल रहा है तो वी शुड बी हैप्पी कि हमको 9% मिल रहा है। वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि 9% मिल रहा है लेकिन 6% तो इन्फ्लेशन का हमारा जाने वाला है। जब भी पैसा आएगा, आज की तारीख में जो 1 लाख या 10 लाख में फ्लैट मिल रहा है वो 5 साल के बाद वो 15 लाख में मिल रहा है। तो हमारा जो 16 लाख या 17 लाख रुपया जो पैसा हुआ उसमें 2 लाख रुपया ही हमारा रिटर्न आया हुआ है। सेम वेज वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द बेसिक टैक्स इम्प्लीकेशन। तो जो हमको जो रिटर्न मिल रहा है उसमें भी टैक्स के इम्प्लीकेशन है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पीपीए इज अ टैक्स फ्री। पीपीए में जो आज की तारीख में 6% 7% रिटर्न मिल रहा है उसके सामने समझो एफडी में 7% मिल रहा है। लेकिन एफडी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें 30% टैक्स या तो 20% या तो आपके जो टैक्स रेट है विल बी एप्लीकेबल, वेयर एज पीपीएफ में आपको कोई टैक्स नहीं बनना है।
तो ऑलवेज वी शुड अंडरस्टैंड कि ये टैक्स फ्री ए रिटर्न है या टैक्सेबल रिटर्न है. ऑलवेज वी शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. जिनेश भाई अपने पास कितना टाइम है? 7:55 ना? हेलो हेलो 15 મિનિટ છે. पावर ऑफ ओके ओके पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एक बेसिक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं. एक मिस्टर ए करके है जो 21 साल में इन्वेस्ट कर रहा है. एवरी मंथ एवरी ईयर ही इज इन्वेस्टिंग 1,50,000 फॉर 10 ईयर. और दूसरा जो पर्सन है एवरी 31 ईयर के बाद उसको लग रहा है कि इनिशियली तो मैं मजा करूं, या तो जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा मैरिज हो जाने के बाद इनिशियल पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. शादी होने के बाद उसको लगता है कि नहीं अभी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है. वो 31 ईयर से 65 ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ये आदमी ने खाली 10 साल इन्वेस्टमेंट किया और ये आदमी 35 ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ये आदमी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख रुपया और ये आदमी ने 52 लाख रुपया. अभी ये केस में किसका रिटर्न एट द एंड ऑफ द 65 ईयर ज्यादा होना चाहिए? कमलेश भाई. सबसे लॉन्ग टर्म करेगा वो. लेकिन उसने तो 15 लाख रुपया दिया हुआ है, हाँ वहां 50 लाख रुपया है, तो दोनों का रिटर्न तो एकदम सरीखा ही होना चाहिए ना. हाँ जो 15 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जिसने 10 साल भरा था, इसका मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने वो टाइम 9% पीपीएफ में था और वही रेट कंटिन्यू होगा तो एट द एंड ऑफ 30 वो 10 साल ही भरा हुआ है उसने, उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया तो उसका रिटर्न है 5 करोड़ रुपया. 15 लाख रुपया जिसने भरा हुआ है आफ्टर 30 ईयर के बाद उसने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका जो पीपीएफ में जो बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द 65 ईयर वो 5 करोड़ रुपया होगा. 31 में जैसे हम लोग ने अभी स्टार्ट किया और 65 तक एवरी ईयर हम भरते रहे और 50 लाख रुपया भरा, लेकिन हमारे हाथ में साढ़े तीन करोड़ रुपया आया. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ऑलवेज इन्वेस्टमेंट छोटी एज में हम करेंगे, इनिशियल एज से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू भरेंगे. SIP भी हम लोग को बहुत सारे लोग एडवाइस कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म. उसका भी ये बेसिक फंडा है कि आप एक ही अमाउंट कंटिन्यू भरते जाओ. उसकी जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है, भले रिटर्न 9% या 6% आवे, लेकिन ये समझो कि 6% का भाई रिटर्न होगा. ये केस में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 6% का रिटर्न होगा दोनों को, जो आज की तारीख में वो है. ये केस में भी यहाँ 1.5 करोड़ रुपया होगा, वहां 177 होगा. ऑलमोस्ट 6% के टाइम दोनों इक्वल होता है, लेकिन 9% का रिटर्न होगा. तो मार्केट में जो इनिशियल रिटर्न था हमारा वो तो 8 to 9% था. अदर देन जो हम लोग ये सेफ इन्वेस्टमेंट भी बात कर रहे हैं, अदर इन्वेस्टमेंट में जो हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जगह म्यूचुअल फंड में कर रहे थे, वहां हम लोग वी आर गेटिंग 12% to 18% रिटर्न, डिपेंड्स ऑन कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो भी हमको समझना चाहिए. इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में, ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि दीज आर द बेसिक ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे पोस्ट के अंदर आप NSE में रख सकते हो, किसान विकास पत्र में कर सकते हो, सीनियर सिटीजन स्कीम है. ये सब रेट मैंने बताया हुआ ये बेसिक रेट है. ये जरूरी नहीं है कि यही रेट होगा, बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे रेट चेंज हुआ है. तो दीज आर द रेट मे बी और मे नॉट बी, और एवरी मंथ जब भी मोदी साहब या तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तब ये रेट चेंज हो जाता है. तो डोंट कंसिडर दिस इज अ फाइनल रेट, दिस आर द बेसिक रेट. एक नेशनल पेंशन प्लान ऑल्सो पोस्ट के अंदर है. पोस्ट के अंदर मंथली पोस्ट की सेविंग स्कीम है. प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना करके एक है. सेम वे बैंक के अंदर नॉर्मल हम लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रख सकते हैं.
टाइम डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग प्लान है, पीपीएफ में ऑल्सो वी कैन इन्वेस्ट इन अ बैंक। सेम वे बॉन्ड के भी वेरियस ऑप्शन है, और वेरियस ऑप्शन के अंदर भी वेरियस ऑप्शन है। गोल्ड का अभी जो बॉन्ड आए, ऐसे सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड है, या तो सोवरजिन और सारे कैपिटल गेन बॉन्ड है, आरबीआई बॉन्ड है, कॉर्पोरेट भी बहुत सारे बॉन्ड है, जितनी भी कंपनी है वो लोग खुद के भी बॉन्ड देते हैं। सेम वे डिबेंचर भी मार्केट में अवेलेबल है। अदर ऑप्शन जैसे डायरेक्ट इक्विटी है, इक्विटी में हम लोग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी लिंक प्लान करके है, डेप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक तो स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए वी शुड प्लान। म्यूचुअल फंड में भी गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट की जो डेप फंड है, सिक्योरिटी फंड है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे डेप्ट फंड भी है म्यूचुअल फंड में, वो लोग ये सब मैंने जो बॉन्ड में बताया वैसे बॉन्ड के अंदर दे विल इन्वेस्ट। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट आइदर इन आरबीआई गोल्ड बॉन्ड। तो बहुत सारे ऐसे भी है कि खाली वो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे है कि वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी ऑप्शन है। बहुत सारे फंडामेंटल ऐसे है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में भी ऐसा है कि वो पब्लिक इश्यू पीएसयू में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हम लोग का रेगुलरली खाने में बहुत सारे ऑप्शन है। कभी हम लोग दाल रोटी बनाते हैं, कभी पंजाबी खाते हैं, कभी चाइनीज। ऐसे इन्वेस्टमेंट भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। तो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए बेटर है और हमको कौन से ऑप्शन में जाना है। एक सेम वे, तो ये बेसिक इन्वेस्टमेंट सेम वेरियस ऑल्टरनेटिव बताया मैंने। ऑल्सो हम लोग को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर इनकम टैक्स के ऑप्शन डिडक्शन इज अवेलेबल। जैसे एटीसी में गवर्नमेंट इज गिविंग अस 1,50,000 का डिडक्शन अवेलेबल। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट देखे उसमें से ये सारे ऑप्शन है कि पीपीएफ में हम लोग 1,50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट एडिशनल डिडक्शन। तो जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 9% का रिटर्न है पीपीएफ में, तो पीपीएफ में 9% टैक्स फ्री रिटर्न है। ऑल्सो हम लोग की जो इनकम टैक्सेबल है उसमें से 1.5 लाख रुपया हम लोग को टैक्स बच जाएगा। 1.5 लाख के ऊपर हमारा 30% बच जाएगा। तो दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट। तो वो भी एक क्राइटेरिया में जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि बैंक की जो इन्वेस्टमेंट एफडी में रखेंगे, जो 5 साल की जो रेगुलर एफडी है उसमें ये डिडक्शन नहीं है, लेकिन वो एटीसी की एक एफडी है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल नॉट अलाउ अस टू विड्रॉ फंड 5 साल के लिए। तो ये एफडी के अंदर भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न में के सामने हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें भी ये डिडक्शन मिलेगा इनकम टैक्स में। तो ये दीज आर जो ऑप्शन ऑलवेज टू बी टेकन कंसिडर व्हाइल इन्वेस्टिंग। कि हमारा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं हुआ है तो फर्स्ट वी शुड प्रायोरिटी कि पीपीएफ में इतना इन्वेस्ट करे, इक्विटी ये इलेएस में इतना करे, सीनियर सिटीजन बॉन्ड में इतना करे। तो ये हिसाब से वी शुड प्लान। ऑलवेज इमरजेंसी फंड के लिए वी शुड प्लान। हम लोग ने अभी का जो एग्जांपल देखा कोविड का, कि ऐसी सिचुएशन आवे कि हमारा 4 और 5 महीना तक कोई भी अर्निंग नहीं होगा, तो हमारी फैमिली को या तो हमारी एफडी या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ब्रेक नहीं करना पड़े, तो ये प्लान करना चाहिए। ऑलवेज डोंट पुट ऑल मनी इन अ वन बास्केट। जैसे बहुत सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी सिचुएशन आ जावे इक्विटी मार्केट या तो शेयर बाजार एकदम नीचे होगा तो हम लोग को लॉस में इन्वेस्ट पैसा रिटर्न करना पड़े कि इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड या तो मैरिज के लिए फंड चाहिए, वो टाइम ही मार्केट नीचे होगा। तो ऑलवेज वी शुड प्लान कि अलग अलग बास्केट में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलवेज वी शुड रिव्यू अवर एनुअल फाइनेंशियल साइकिल एंड कीप इम्प्रूविंग। कि हम लोग का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो हिसाब से हम लोग वेदर वी आर गोइंग उसके हिसाब से वी शुड ऑलवेज प्लान एंड वी शुड एनुअली वी शुड प्लान
कि हम लोग का एनुअल प्लान जो था, हमारा जो बजट या तो प्लानिंग था, उसके सामने हम लोग कहाँ पहुंचे हुए। जैसे वो प्लान में हमने बताया कि हम लोग को 1 बजे बड़ौदा सूरत पहुंचना था, हम लोग 2 बजे पहुंचे, तो वी शुड प्लान कि हम आगे कैसे प्लान करें हमारा जर्नी, या तो हमारा खाने का प्लान है वो बीच में ब्रेक थोड़ा शॉर्ट कर ले, ऐसे हमारे जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो कट कर ले, और हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको मैनेज करें। सेम वे वी शुड प्लान ऑलवेज रिटायरमेंट प्लान, वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर ए विल। ये भी एक बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वी शुड ऑलवेज प्लान कि हमारा विल होना चाहिए, और विल सबको बनाना चाहिए। और विल बनाने के लिए मैंने उसके पहले भी बताया था, किसी को हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैंने एक बेसिक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, आप बेसिक ड्राफ्ट के ऊपर से आपका विल, आपकी जो एसेट है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है, उसका आप प्लान कर सकते हो। ऑलवेज विल बनाना इसलिए जरूरत है कि आप जैसे आपका जो 25 साल 30 साल की जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी वेल्थ क्रिएट की, आपको किसको देना है, दिस चॉइस शुड बी विथ यू। आपको किसको देके जाना है, कैसे आपका फंड का मैनेज होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ पैसा किसको महीना कितना पैसा जाना चाहिए, तो ये सब प्लान आप करेंगे तो विल लिख बना होगा तो ये होगा। अदरवाइज एज पर द हिंदू एक्ट, ऑलवेज आपके जो फैमिली मेंबर है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी डॉटर, उसमें इक्वली डिवाइड होगा, और इक्वल डिवाइड होने के बाद सम डिस्प्यूट विल बी देयर। या तो समझो कि एक ही घर है और वह घर में आप 3 बच्चे हैं, वाइफ है, और सब लोग बोल रहे कि हमको पैसा दो, तो दूसरा बच्चा जो है, या तो जिसके हाथ में ये फ्लैट आएगा 3 करोड़ 4 करोड़ का, उसको बोरो करना पड़ेगा दूसरे को वो शेयर देने के लिए, या तो फ्लैट बेचना पड़े, या 3 करोड़ है सबको 75 लाख रुपए देने के लिए ही हैज टू बोरो इन द मार्केट, कि भाई ये सबको मैं 75 लाख रुपया दूं। उसके पहले से ही कुछ प्लान किया होगा, विल में बताया होगा कि भाई मेरे एक्सपायर्ड होने के बाद फर्स्ट राइट विल बी विद माय वाइफ, टिल माय वाइफ रहेगी वहां तक ये उसका 100% राइट है। उसके बाद सिविल डिसाइड कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो आपको जैसे भी लगे आपका विल बनाना चाहिए और इशू प्लान अकॉर्डिंग है। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, या तो रेगुलर जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यू शुड ऑलवेज प्लान। और जैसे मैंने बताया कि आपका रेगुलरली आपकी अर्निंग है उसको आपको प्लान करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। ऑलवेज टेक ए कंसल्ट ऑलवेज एक्सपर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट। हम लोग ऑलवेज निग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग छोटी मोटी बीमारी में भी हम लोग खुद ही दवा ले रहे हैं, लेकिन जब भी हमको थोड़ा ज्यादा लगे तो हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हम लोग ऐसा ही लगता है, और हम लोग वी आर नॉट कंसल्टिंग का फाइनेंशियल कंसल्टेंट कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है, अकॉर्डिंगली हाउ वी शुड प्लान। ये लोग ये ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, दे आर ओनली चार्जिंग 5,000 to 10,000 और 15,000 फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये करने से बेटर हम लोग को एडवाइस मिलेगी, एंड वी शुड ऑलवेज प्लान। एंड सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप योरसेल्फ हेल्थी एंड डू योगा रेगुलरली, क्योंकि ये सबसे जरूरत है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कीप हेल्थी योरसेल्फ, अदरवाइज ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि फ्यूचर में हम बताएंगे कि 10 साल के बाद मैं फॉरेन टूर करूंगा, या यूरोप जाऊंगा, या यूएस जाऊंगा, लेकिन 10 साल के बाद ये योगा नहीं करते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हालत अपनी ऐसी होगी कि हम लोग घर पे बैठे रहेंगे और हमारे पैसे से हमारे फैमिली मेंबर हम लोग ये जूम के अंदर हमको फोटोग्राफ बताएंगे कि हम यूएसए क्या एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑलवेज कीप हेल्थी, ऑलवेज हेल्थ इज प्रायोरिटी। So keep healthy yourself, do yoga. This is all from my side. ટાઈમ છે 1-2 મિનિટનો, 2-5 મિનિટ, કોઈના સ્પેશિયલ હોય તો લઈ લઈએ પછી, अथवा बेसिक प्रिंसिपल एक खाली 2 मिनट ले लो। हाँ, हम लोग जैसे जैनिज्म में हम लोग को ऑलवेज हम लोग बोलते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, हम लोग कभी भी कोई भी बात करते हैं ना, तो ये बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर द, अभी की जो सिचुएशन है उसके बाद हमको क्या करना चाहिए। तो जैसे जैनिज्म के हम लोग बोलते हैं कि मन वचन एंड काया, हम लोग कोई भी हम लोग बात करते हैं कि भाई कोई भी हिंसा होती है तो उसका एक एग्जाम्पल होता है कि हिंसा पहले है ना मन से होती है,
उसके बाद वचन में आती है कि हम लोग क्रोध करते हैं या तो उसका भी मन से बोल देते हैं कि उसको तो मैं मार डालूंगा, और उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो ये ऑलवेज जैनिज्म में हम लोग हिंसा को हिंसा तभी बोलते हैं, मन में भी आया ना, उसको भी हम लोग पाप गिनते हैं कि मन में हमने सोचा कि उसको मैं मार डालूंगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, हम लोग ने पाप किया। तो ये जैनिज्म का एक बेसिक डीप रूट है जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ऐसे बिजनेस के कनेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, जहां तक हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे कि ये कोविड के बाद मार्केट इज गोइंग टू बी नॉर्मल, बराबर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, वहां तक हम लोग वी विल नॉट स्टार्ट। तो ऑलवेज बिजनेस में भी वी शुड प्लान कि भाई अभी ऑलमोस्ट धीमे धीमे सिचुएशन नॉर्मल आती जाएगी, 2 या 4 महीने में रेगुलर सिचुएशन आएगी, जो बिजनेस में जो रेगुलर अपॉर्चुनिटी थी मेरे को मिलेगी। तो ऑलवेज पहले मन में सोचो, मन में हम सोचेंगे तो वचन में आएगा, बोलने में किसी को भी फोन बात करेंगे तो हम वो, या तो नहीं तो क्या होगा, हमारे माइंड में नहीं होगा तो हम लोग बोलने में भी ऐसा किसी के साथ बोलेंगे यार धंधा ही नहीं है, मार्केट चालू नहीं होने वाला है, तो सामने वाला अपने को बिजनेस नहीं देगा। तो ऑलवेज वी शुड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि भाई 2-4 महीने में ये सिचुएशन नॉर्मल होगी, 2 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद, और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बाद बोलते जाएंगे तो एक्चुअल बिजनेस हमारे पास आएगा। तो ऑलवेज मन वचन काया ये प्रिंसिपल जैसे जैनिज्म में है, ये बिजनेस में भी अप्लाई होगा। तो ऑलवेज ये करना चाहिए, और ऑलवेज कीप ए हैबिट ऑफ हैविंग अ बिजनेस की हंगर। मैंने एक यहाँ फोटो स्क्रीन कर रहा हूँ, मैंने उसके पहले भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये शेयर किया था। मैंने ये जब भी मैं कुछ मंदिर जा रहा था तब ये कोई मेरे हिसाब से होंडा सिटी है, उसके अंदर उसने ये सब बेचने का स्टार्ट किया था। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि ये सिचुएशन में सोचेंगे कि अभी हमारे समझो ट्रैवलिंग का बिजनेस है, ट्रैवलिंग को अभी 6 महीना 2 साल नहीं है, अभी क्या करेंगे। तो कोई आइडिया देता है कि भाई अभी कोविड के रिलेटेड आप बिजनेस करो, तो बोलेंगे उसके लिए मैं बिजनेस जगह कहाँ लूँ, मेरे पास तो मस्जिद बंदर में ऑफिस है, यहाँ कहाँ जगह लूँ, और जगह लगा तो उसका मंथली भाड़ा होगा तो मंथली मेरा कितना टर्नओवर होगा, कैसे पेमेंट करूंगा। तो ये सब इश्यू ऑलवेज हमारे माइंड में रहता है। उसके सामने ये जो हंगर जिसको है, उसने गाड़ी के जो डेकी है उसके अंदर ये लगा के उसने स्टार्ट किया। जिसको ये हैबिट बिजनेस की ये जो भूख है ना, जिसको भूख है ना, वो ये सब बिजनेस कैसे करना है ना उसका ऑप्शन स्टार्ट करता है। दूसरा जो आदमी है उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, आदमी नाला सोपारा से यहाँ साईं बाबा के बाहर खड़ा है, साईं बाबा रोड के ऊपर, वो साईं बाबा से स्कूटर के ऊपर ये सब स्नैक्स आइटम उसकी वाइफ बनाती है, और वाइफ बना के यहाँ लेके आता है, और ये एक पटिया रखा हुआ है स्कूटर की जो हमारी सीटिंग है उसका पटिया के ऊपर ये सब रखा हुआ है, 10-10 रुपए की सब आइटम है, और ये आइटम बेच रहा है। मैं बोला क्या करते हो, तो बोला ये नाला सोपारा से आता हूँ, वाइफ बनाती है और यहाँ मैं 2 बजे तक बैठता हूँ, जहां तक पुलिस हमको हैरान नहीं करती है। ये मई महीने की बात है, और पुलिस आती है तो 1-2 चीज उसको भी दे देता हूँ, वो लोग को अप्रिशिएट करता हूँ और उसको भी देता हूँ। और जो भी निकलते हैं मई जून महीने में, तो धीमे धीमे स्टार्ट किया। मैं बोला बारिश में क्या करेंगे, बोला रास्ता निकल जाएगा। तो अभी देखता हूँ वो छाता लेके खड़ा है बड़ा वाला, और अभी भी ये आदमी कर रहा है। तो ये हंगर जहां तक हमारे में नहीं रहेगी और हम लोग हमारी जो एक्चुअल बिजनेस है उसको पकड़ के रखेंगे, तो ये सिचुएशन में डिफिकल्ट है। समझो आज के ट्रेड में ट्रेन चालू नहीं है, हमको अलाउ नहीं है मस्जिद बंद, तो ऑल्टरनेट जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया कि वी शुड ऑलवेज प्लान ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, ऐसे बिजनेस में भी वी शुड हैव ए सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये प्लान करना चाहिए। मैं यहाँ 1-2 वीडियो की लिंक आपको शेयर करूंगा, अभी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम शॉर्ट है। तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसके अंदर बिजनेस ऐसे ऑप्शन है कि आप लोग 5-10, 15,000, 20,000 के इन्वेस्टमेंट में या 50,000 के इन्वेस्टमेंट में आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। मेरा हाथ में कुछ नहीं है, ये देखिए कुछ मिनट्स में, क्योंकि कभी कभार में क्या ये बल्ब बंद हो जाएगी, जैसे ही चूहा निकले 10-15 उसकी टाइमिंग सेटिंग भी हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। वो लाइट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, वो सब कैटलॉग में। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा कम प्रोडक्ट्स रखे हैं आज। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, ये लाइट बल्ब के वीडियोस बनाने का वीडियो है जो हाउस होल्ड में बन सकता है। ऐसे ऑलमोस्ट 1,000 से 5,000 हाउस होल्ड में हम लोग
समझो जो स्नैक्स है, या तो जो पेप्सी, या तो वो पेप्सी कोला जैसा एक जूस आता है, ऐसे बहुत सारे विजुअल्स है कि वो अवेलेबल है ये साइट पे कि स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस क्या कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग ओनली इन जो मशीनरी 10,000 या 50,000 के अंदर है, जिसके अंदर आप मंथली 3,000 से 5,000 रुपया मंथली कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, या यूट्यूब वीडियोज है, वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक मेरा प्रेजेंटेशन था। ओवर टू कमलेश भाई। थैंक यू वेरी मच। जिनेश भाई एक मिनट लो। जिनेश भाई मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। आज मेरे पापा हाजिर है। कोविड के टाइम 4 महीना हम लोग घर पे बैठे, तो एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि 4 महीने में मेरा और ब्रदर का, हम लोग का जॉइंट फैमिली बिजनेस है, साथ में बिजनेस चल रहा था, टोटली बंद हो गया। 4 महीना फक्त आउटगोइंग शुरू था। काफी लोग बोलते हैं कि गांव वाले हैं या रिलेटिव्स है, 5,000 दो, 10,000 दो, तो वो आउटगोइंग ओनली फॉर चालू था। तो इसी टाइम में हमको मालूम पड़ा कि हम लोग जो बिजनेस करते बहुत अच्छा था, ऐसा हमें एक भ्रम था। लेकिन मेरे पिताजी ने 20 साल से रेगुलर, वो 1 तारीख होता है तो बैंक में चले जाते हैं, अलग अलग खाते में अपना फैमिली के सब खाते में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो इनकम करते हैं, आज हमारे 2 ब्रदर का इनकम से ज्यादा पापा घर पे बैठे हैं, तो उनका इनकम सबसे ज्यादा है। हमें खुद दिखता भी नहीं है, मालूम भी नहीं, लेकिन वो रेगुलर उनका एक आदत है। वो आदत आज हमें अच्छा लगता है। मैं 5 साल पहले मैं खुद कंप्लेन करता था, क्या पापा ये सब करते हैं, ये सब इधर पैसा डालने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मालूम पड़ रहा है तो घर पे बैठे बैठे भी हमारे से ज्यादा इनकम वो कमाते हैं, वो कुछ नहीं करते। लेकिन कोई आता है तो उनको अच्छा कोई संस्था कोई अच्छा काम कर रही है, जैसे जेडी भाई की संस्था है, तो उसमें भी वो रेगुलरली वो लिखाते हैं, किसी को भी उसमें भी गैप नहीं होने देते। मेरा कहने का मतलब है, आपके घर में लेडीज लोग सबसे ज्यादा, काफी लोगों को बहुत सारा चीज नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप लोग कभी संभालते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ध्यान उस तरफ भी देना चाहिए। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि कोई भी आपको सेविंग करने से पहले आपको 2 चीज सोचने का। आपको नीड है, ये जरूर देखो, फूड है वो नीड है, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान है आपका नीड है। लेकिन वांट बोले तो मुझे होंडा सिटी से चलता है, लेकिन मैं सोचूंगा इनोवा लेना है और लेना है और ऑडी लेना है, वो मेरी वांट है, वो मेरी इच्छा है। तो इच्छाओं को कभी तुम ये नहीं कर सकते। तो पहले सेविंग करो। जेडी भाई ने जो बताया वो परफेक्ट है कि नीड और वांट का डिफरेंट आप सोच लेना कोई भी, उसके बाद आपके बच्चे को भी ये करिए। और प्रैक्टिस, समझो लेडीज है, आपके हाथ में 50,000 रुपया हर मंथ मिल रहा है, आप 50,000 में कितना बचा सकते हैं वो ट्राई करो। आप अपने बच्चे को 7,000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी देते, बच्चे को भी सिखाइए कि 7,000 में आप कितना बचा सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस है, ये आदत है। वो आदत आप करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम मालूम पड़ेगा। पहले जमा तो करो, फिर कैसे कहाँ रोकना है वो एक्सपर्ट को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन पैसा होएगा तो। बेसिक है, आप इन्वेस्टमेंट सेव बचत करो। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा? जेडी एक सवाल है मेरा, कल मेरे पास सवाल आया था। सपोज लेडीज लोग जमा करते पैसा, अभी वो हमें नहीं बोलना चाहते कि नहीं तो कमलेश भाई ने लेके जाएगा पैसा, तो वो जमा करते हैं घर पे, और वो इन्फ्लेशन का नुकसान होएगा, महंगाई का ये होएगा, अभी वो पैसा धीरे धीरे उनका जमा होएगा, और कैश का पैसा वो बाद में 2 नंबर हो जाएगा। हमने दिया ऑफिसर, लेकिन हो जाएगा 2 नंबर। अभी वो बता भी नहीं सकते, और उसको कैसे कहीं इन्वेस्ट करे और कैसे उसको ये करे। अभी वो ऑप्शन नहीं है, वो लोग के लिए भी ऑप्शन नहीं है। वो आवाज आ रहा है? यस यस। वो लोग के लिए भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं और ये 2 नंबर में सेव करेंगे तो वो नहीं अलाउड है, उसके ऊपर पूरा टैक्स लग रहा है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जो रिटर्न लेडीज फाइल करती है उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए कि मैंने पोस्ट में रखा या तो मंथली कोई भी कहाँ भी इन्वेस्ट किया, वो एडवाइजेबल नहीं है। अदरवाइज जब भी वो बैंक में भरेंगे तभी 30% टैक्स या तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो विल बी कंसिडर एज ए अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, और वो बड़ी अमाउंट होगी तो वो तकलीफ आएगी, या तो वो साल के अंदर हमको इन्वेस्ट इनकम बतानी पड़े। तो ऑलवेज ये अवॉइड करें। मोदी साहब ने जब भी ये
ब्लैक मनी बाहर निकालने के टाइम बहुत सारे लोग ने 50-50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया लेडीज लोग ने इन्वेस्ट किया था और सबको तकलीफ पड़ा। तो ये एडवाइस नहीं करूंगा, लेडीज लोग भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी डिस्क्लोज करें, जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो विद इन 5 लाख रुपीज अभी टैक्स फ्री है, तो कोई इश्यू नहीं। बेटर है कि हस्बैंड के साथ रह के उसको विश्वास पे लेके कहीं और एक अकाउंट में खुलवा दे ऑफिशियली। और ये ट्रस्ट की बात है, जैसे हस्बैंड भी ट्रस्ट करके जो भी इनकम आ रही है वो फैमिली को बता रहा है या तो फैमिली के हाथ में दे रहा है, ऐसे लेडीज को भी ये शुड प्लान करना है। ठीक है, इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू शुड प्लान कि भाई हस्बैंड को ये सब चीज बेसिक जो इमरजेंसी फंड के लिए वो प्लान कर रहे हैं वो भी बोल के रखना चाहिए कि मैं इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दे रहा हूँ उसमें से मैं थोड़ा कुछ बचत इमरजेंसी के लिए मैं सेव कर रही हूँ। कितना कर रही हूँ नहीं बताया जो चले, लेकिन ये सब बोलना चाहिए कि इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर कीपिंग, क्योंकि कभी वो टाइम आप नहीं रखो तो मेरे को तकलीफ नहीं पड़े, आप मंथली नहीं दो तो। ओके, और किसी को कुछ कहना है तो मैं एक महेश भाई को 1 मिनट चाहिए और मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है तो टाइम हमारे पास कम है। महेश भाई कुछ आप शॉर्ट में कुछ कहना चाहेंगे जेडी के लिए? यस सर, जेडी नमस्ते इंडिया। आपको पहली बार फाइनेंस के ऊपर सुना है और आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, शुरुआत से अंत तक आपने ग्रिप रखी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं 2 बात करना चाहता हूं कि पहली बात जेडी आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, आपने की कि मेरी गलतियों से मैं जो सीखा हूं, तो ये हर व्यक्ति के लिए मेरे लिए भी है। मैं सोचता हूं काश आप मुझे 20 साल पहले मिले होते तो आज मैं ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 20 साल पहले भी हमें कोई मिला है आपके जैसा, लेकिन हमने उसकी बात सुनी नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले 5 साल से मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और आपको सुन के मुझे लगता है और इम्प्रूवमेंट होगा। आपको पर्सनली फोन करूंगा, मैं आपसे बहुत अप्रिशिएट हुआ हूं। दूसरी बात, आप 6 to 15% इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये सब इंटरेस्ट भी अभी बैड डेट होता जा रहा है। बहुत से फंड है वो बैड डेट में जाते रहे तो लोगों का 15% ब्याज भी डूब रहा है। इससे अच्छी स्कीम मेरे पास है, तो मैं आप ये बात आप मजाक में भी ले सकते हो या गंभीरता से भी ले सकते हो। आपके पास जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर अलग अलग, बहुत अच्छी बात की आपने, सब प्रैक्टिकल बात की है, बहुत ही जरूरी बात है, सबको करना चाहिए, आवश्यक बातें हैं। लेकिन आपके एक फरमाइश देता हूँ, आपके पास जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको बोलो अब 50%, 60%, 70% इंटरेस्ट की स्कीम जून पे चालू हो गई है। हम लोग योग और मेडिटेशन में 75% तक का रिजल्ट देने के काबिल है। उनको जो 5 लाख डॉक्टर के पास जाके देते हैं वो 5,000 में यहाँ पे मिल सकता है। और आपने सेकंड स्टेज में वो भी बात की योग और योग की, आपका 5 लाख रुपया भी काम नहीं लगेगा, फॉरेन टूर के सपने रह जाएंगे। तो योग और ध्यान में सबको यहाँ भेजो और आप जो यहाँ भेजेंगे लोगों के, उसके साथ में जो पैसा आएगा उसे मैं 15% की स्कीम में इंटरेस्ट करूंगा। अब मुझे वो इन्वेस्टमेंट करना है, आपने जो जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम दिखाई उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप लोगों को यहाँ भेजो योग और ध्यान के लिए और उसमें इन्वेस्ट कराओ लोगों को। और लास्ट में आपने हंगर की बात की, आपका टॉपिक बहुत ही सिस्टमेटिक है। आपने हंगर की बात की वो बहुत ही, बिल्कुल आज के समय में बहुत ही हंगर की जरूरत है। नेगेटिव थिंकिंग छोड़ना है, पॉजिटिव थिंकिंग बनाना है, धंधा अच्छा चलेगा। उसकी जो आपने थॉट्स दी भगवान महावीर को साथ में लेके उस बात को जोड़ी, वो क्लाइमेक्स पे बात ले गए आप। तो आपकी पूरी बातें हमें बहुत पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद जेडी सिंह, जेडी भाई, थैंक यू। जिनेश भाई। हाँ भाई, हेलो। यस। જેડીભાઈ સરસ વાત કરી। ઘણા અમારા મિત્રો હમણાં જ રિસેન્ટલી ઝૂમ પર જોઈન થયા છે, એ બધા શોર્ટ ટર્મ વાળા છે। જે લોકોની તમે આ સ્પીચ સાંભળી જેડીભાઈ, એ લોંગ ટર્મ વાળા છે। 15 વર્ષથી જેડીભાઈ યોગામાં હશે મારા ખ્યાલથી, બરોબર ને? આઈ થિંક સો 15 વર્ષથી આવે છે। તો એ લોંગ ટર્મ નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય ને, એની લેંગ્વેજ તમને ખબર પડી શકે છે। અમારા કમલેશભાઈ 20 વર્ષથી જોડાયેલા છે। તો જે લોકો અત્યારના શોર્ટ ટર્મ યોગામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે ને, એ લોકો મિડલ ટર્મ થી લોંગ ટર્મ જોડીએ અમારી જોડે જોડાઈને રહો, એવી અમે શુભકામના કરીએ છીએ। અને જેડીભાઈ જે આપણને સમજાવ્યું, જેડીભાઈ આટલું જે સારામાં સારું આપણને સેશન સમજાવ્યું, એની પાછળ જેડીભાઈ તમારી બી ક્રેડિટ યોગાને દેવી જોઈએ પછી કે ડેલી હું કરું છું તો આપણે આપી। અને બીજું તમારી સાથે મને જે રેગ્યુલર જે આનંદ થાય છે યોગામાં,
એના માટે થેન્ક યુ. થેન્ક્સ. તો આપણે છેલ્લી નાનકડી ક્રિયા કરીને અહીંયા સેશન ની કમ્પ્લીટ કરીએ, કેમ કે જેડીભાઈ પણ રોજ આ કરે છે ને, અને કમલેશભાઈ પણ આ રોજ કરે છે, એટલે જ એ લોકો, અને મહેશભાઈ બી કરે છે, એટલે જ એ લોકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નું લેવલ એટલું સરસ છે. છેલ્લી નાનકડી ક્રિયા લેફ્ટ રાઈટ અનુલોમ વિલોમ કરી અને આપણું સેશન અહીંયા ક્લોઝ કરીએ છીએ. ચલો સ્પીડમાં કરી લો, 1 સેકન્ડ માટે, 1 મિનિટ માટે. ચલો સ્ટાર્ટ. સ્ટોપ ભાઈ. ચલો લવકર શાંતિ લગાડી દો ભાઈ. જય ભગવાન. એટલીસ્ટ લાસ્ટ આજે જેડીભાઈ માટે જે પણ રિવ્યુ હશે પ્લીઝ તમે શેર કરી શકો છો વોટ્સએપ ગ્રુપ પર બી, અને જે પ્રશ્ન લાગશે અમે લોકો જેડીભાઈ ને ફોરવર્ડ કરીશું. જેડીભાઈ આજનો દિવસ જરા પ્લીઝ વોટ્સએપ જોજો. પીપીટી બી શેર કરીશ તમારા ઈમેલમાં કે કોઈને બી. હું એક યસ પીપીટી યસ 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 બરાબર. હાજી સર, થેન્ક યુ જેડીભાઈ. બી ફ્યુચરમાં રેફર કરવી તો કરી શકે કોઈ બી. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ફીલ ઓલસો કોઈને બી હેલ્પની જરૂર હોય તો ઓલવેઝ કોન્ટેક્ટ મી પર્સનલી. થેન્ક યુ. જે લોકોને લોન જોતી હોય તગડી જેડીભાઈ નો ડેફિનેટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. કમલેશભાઈ. હા, એટલે બેઉના ખિસ્સામાં છે, ડાબા અને જમણા પોકેટમાંથી આપી દેશે. ચલો જય ભગવાન. ગુડ ડે. જય ભગવાન બધાને. જય ભગવાન. જય ભગવાન. જય ભગવાન. જય ભગવાન બધાને. જય ભગવાન. જય ભગવાન. ચલો કમલેશભાઈ નીકળી ગયા છે, હોસ્ટ નીકળી ગયા છે.